Well, as we all know that on the 15th August 2016, India has entered the 70th year of independence. And our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, has called these Independence Day celebrations of 2016 as 70 Saal Azadi Zara Yaad Karo Qurbani. Under this program, we at SGT have had a fortnight-long celebrations in the form of various events and competitions, starting from the 9th of August. And today is the concluding day for these celebrations, when we all will very proudly sing our national anthem. हम पहले पुरस्कार वितरण करेंगे। उन सभी विनर्स को हम पुरस्कार देंगे जिन्होंने इन कॉम्पिटिशन्स में जीता है। So there were many competitions held, starting right from 9th of August till today. And we have the winners of all these competitions. With the quiz, there was a quiz held and all questions regarding our freedom struggle were asked and the students really came up well. So the first prize in the quiz was backed by Ashwani and Arjun from the Faculty of Engineering. Hello. Second prize was backed by Sandesh and Devanand from the Faculty of Pharmacy. Third prize was backed by Riya and Pooja from the Faculty of Engineering again. Next was poetry competition, and the first prize in poetry competition was won by Gopal from the Faculty of Hotel Management. Sarika from the Faculty of Physiotherapy. Third prize, Rupansh. Then there was traditional dress competition. First prize is won by Naseem from the Faculty of Ayurveda. Second prize, Ravinder, again from the Faculty of Hotel Management. Third prize, Priya from the Faculty of Physiotherapy. Essay writing competition. First prize, Priya Shaukin, BSc Nursing. Second prize, Preeti Kumari. Come on, can we have a big round of applause for these faculty who won so many prizes? Declamation contest. First prize is backed by Ishpreet Singh, Faculty of Dental Sciences. Second prize, Rupansh from the Faculty of Mass Communication. Congratulations, Rupansh, well done. Third prize, Shashank from the Faculty of Engineering. Then poster making competition. First prize, Ashutosh from the Faculty of Engineering. Second prize, Aishwarya, BCA. And third prize is a tie between Rajat from the Faculty of Physiotherapy and Sonu Raghav from the Faculty of Ayurveda. And finally, we have this competition of colors, the Rangoli competition. First prize, Monica and Ritu from the Faculty of Nursing. Second prize, Sadaf and Ankit from the Faculty of Physiotherapy. And here's the last and final prize. We can have a big round of applause. Srishti and Namisha, third prize from the Faculty of Clinical Psychology. May I request our Honorable Pro-Chancellor, Dr. T.D. Dogra, to kindly come and speak a few words. माननीय श्री सिंगला साहब श्यामलाल सिंगला जी, वाइस चांसलर एसजीटी यूनिवर्सिटी, मेरे अन्य मित्रगण एवं प्रिय बच्चों, ये स्वतंत्रता दिवस हमको मुफ्त में नहीं मिला है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिए हैं। 1857 से शुरू हुई जो लड़ाई
जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था 1947 में जब खत्म हुई, तब हजारों वीर सिपाही, वीर सेनानी इसके लिए मर खप गए थे। बहुतों ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा, बहुतों ने अंग्रेजों की गोलियां खाई, बहुतों को अंग्रेजों ने जेल में यातनाएं दी, और उस सब के बाद उनको ये महसूस हुआ कि अब हम इन लोगों को ज़्यादा देर तक इन पर राज्य नहीं कर सकते, और वो छोड़कर जाने में मजबूर हुए। महात्मा गांधी ने एक असहयोग आंदोलन जो चलाया शांतिपूर्ण, उसका भी योगदान है, क्योंकि उसमें हर व्यक्ति ने जो कुछ गांधी ने कहा उस वक्त या किया, उसमें हर हिंदुस्तानी की भावना थी। वो बात कर रहे थे जिससे हर हिंदुस्तानी को प्यार था, ममता थी, इसलिए हर हिंदुस्तानी ने उनका साथ दिया, और साथ देकर के हमने एक लंबे संघर्ष के बाद में इस स्वतंत्रता को प्राप्त किया है। हमें आज के दिन उन सभी के बलिदान को नमन करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, और अपने नए भारत को बनाने के लिए जो एक कल्पना अभी हमारे नए प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र कुमार जी ने हमें दी है, एक जो उन्होंने उम्मीद जगाई है, एक जो नया उन्होंने ड्रीम हिंदुस्तान को दिया है, एक नया स्वप्न जो दिया है, उसको साकार करने के लिए हम सबको बराबर कोशिश करनी पड़ेगी। वो किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा, गवर्नमेंट के करने से नहीं होगा, किसी मशीनरी के करने से नहीं होगा, उसमें हम सबको, हर व्यक्ति को, इस राष्ट्र के आखिर में खड़े व्यक्ति को भी उसमें योगदान देना पड़ेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। बच्चों, मालूम नहीं होगा आप लोगों को, ये आज़ादी जैसा हमारे डोगरा साहब ने बताया, कितनी मशक्क़त के बाद, कितनी कुर्बानी के बाद मिली है। लेट अस नॉट फ्रिटर इट अवे। इसके लिए जो जज्बा चाहिए, जो क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस चाहिए, जो बुराइयों से लड़ने के लिए, जो सोशल इविल्स हैं उनसे लड़ने के लिए जो जज्बा चाहिए, यही उम्र होती है जिसमें कि आप उसे डेवलप करते हैं। एक मकाम है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक अच्छे नागरिक बने, लेकिन इसके साथ इस देश को एक नए हॉराइजन पे ले जाना है, और इसके लिए जो सोशल इविल्स हैं हमारे यहाँ, उसको हर हालत में, करप्शन, कास्टिज्म, तमाम जो सोशल मैलिस हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको कहीं से अगर आप देखें तो ज़ीरो टॉलरेंस रखें। ये अवसर है जिसमें कि यही एक कहा जा सकता है कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग आप एक डिफरेंट हो। जब तक आप ये नहीं होंगे तो स्टेट, इंस्टीट्यूशन, लॉज ये आपको बदल नहीं सकती, समाज बदल नहीं सकता। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बदलें, ज़ीरो टॉलरेंस रखें जो सोशल इविल्स हैं, दहेज प्रथा, स्त्री प्रताड़ना, परसिक्यूशन ऑफ विमेन, ये सारी चीज़ें जहाँ भी देखें आप तन के खड़े हो कि नहीं होने देंगे। ट्रेन में जा रहे हैं, अगर देख रहे हैं कि एक टीटी करप्शन कर रहा है, तन के खड़े हो जाएं। जब तक ये जज्बा नहीं आएगा, मुझे लगता है कि दिक्कत होगी। और ये जो हमें मिला है 70 साल की आज़ादी, इसका सही प्रतिफल, इसका सही फ्रूशन जो होगा वो इसी में हो सकता है कि हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ज़ीरो टॉलरेंस की तरफ बढ़े। तो मैं इसी के साथ चाहूँगा कि एक बार फिर से नारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की। आखिरी वाला थोड़ा और बुलंद हो, भारत माता की। तो आइए अब हम सब एक बार फिर गर्वान्वित होकर अपना राष्ट्रगान गाएं। I request all of you to kindly stand straight, to kindly line up.